ہماری کیس نمبر 5، تو چلتے ہیں اپنی اگلی کیس کی طرف۔ سمیہ بیگم نے بتایا، چلیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں بھی، جان یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، گھر میں ہوتے تو آپ کو کھانا کے بغیر جانے نہیں دیتی، سمیہ بیگم کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان لوگوں کو دروازے کے باہر تک چھوڑ کر واپس آ گئی۔ وہ لوگ باہر آئے تو وحدان نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ کے سب کے بیٹھنے کے بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ ماضی 3 سال پہلے آسمانوں پر بادل کا گھیرا تھا، آج کبھی چاند بادل میں چھپ جاتا، کبھی روشنی پھیلانے لگتا۔ زیک، میلوڈی اور وحدان ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جس میں کالے رنگ کے صوفے تھے اور بلیک ووڈ کا ہی بنا ہوا چوکور میز تھا جس پر گلدان پڑا تھا۔ میلوڈی بھی کچھ دن پہلے کے واقعے سے سنبھل چکی تھی کہ کسی ایسے انسان کے لیے خود کو کیا ذلیل اور غمزدہ کرنا جس کو ان جذبات کی قدر بھی نہ ہو۔ میلوڈی، ہانیہ تمہاری بات سن لے گی، تم ساتھ چلو گی تو وہ بھی لائٹ فیسٹیول میں آ جائے گی۔ وحدان کو بھی محبت کے پیچھے کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ دیکھو تم لوگ کو، ایک تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کسی پارٹی میں جانے کو، اور تم نے مجھے لائٹ فیسٹیول کا کہہ رہے ہو۔ اگر میں چلی بھی جاؤں تو ہانیہ کو ماننا بہت مشکل ہے، وہ بھی اتنی رات کو وہ نہیں مانے گی۔ میلوڈی نے بیزاریت سے جواب دیا، آپ کوشش تو کرو، 8 بجے سے پہلے ہی گھر بھیج دیں گے اس کو۔ وحدان بولا، پھر زیک کی طرف دیکھا جو اس تمام صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا، تم کس خوشی سے مسکرا رہے ہو؟ جو میری مدد نہ کی تو تمہاری بھی راز ادھر ہی فاش کر دوں گا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر میلوڈی کی طرف دیکھا جس پر زیک ایک دم سے سیدھا بیٹھا اور بولا، ہاں میلوڈی تمہیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ پھر فون پر ہانیہ کا نمبر، ہیلو ہانی کی آواز میں میلوڈی نے پھر سے کہا، وہ ہانیہ؟ میلوڈی بات کری، ہاں میرے پاس نمبر ہے تمہارا، کب کیسی ہو؟ ہانیہ پوچھا، اب ٹھیک ہوں۔ وہ دراصل میں ذرا اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں، تو سوچ رہی ہوں کہ کل شام کو لائٹ فیسٹیول ہے تو کیوں نہ تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ تم تو میرا حال جانتی ہو، ہاں میں کوشش کرتی ہوں، میں بابا سے پوچھ کر ہی بتا سکتی ہوں، میں تھوڑی دیر میں فون کرتی ہوں۔ اوکے، ہانیہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وحدان منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کچھ دیر میں فون کرے گی، انتظار کریں، لیڈو نے اپنی پونی ٹیل ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ان سب نے کافی کا آرڈر کیا اور انتظار میں بیٹھ گئے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہانیہ کی کال آئی، ہیلو میلوڈی، پاپا مان گئے ہیں پر 8 بجے تک گھر واپس آنا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے مطلع کیا، ٹھیک ہے کل ملتے ہیں۔ میلوڈی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، کل آ رہی ہے، اب کام ہو گیا ہے تو کھانا ہی کھلا دو۔ وحدان نے اس کی بات سن کر آرڈر کیا، وہ لوگ کھانا کا انتظار کرنے لگے۔ دسمبر میں ہونے والا لائٹ فیسٹیول نے لندن کی روشنیاں اور بڑھا دی تھی۔ اونچی عمارتوں پر 3D روشنیاں فینٹیکس ورلڈ کی مناظر پیش کر رہی تھی، برقی چمکاؤں نے ماحول کو سحرگین بنا دیا تھا۔ وحدان کی گاڑی آ کر رکی، وحدان ہمیشہ کی طرح ہوڈ پہنے ہوئے تھا۔ ہانیہ نے جینس پر گھٹنوں تک آتی پرپل رنگ کی قمیض پہنی تھی جس کے اوپر بلیک لانگ کوٹ تھا۔ میلوڈی جینس اور ٹرٹل کے نیک سویٹر میں تھی، جبکہ زیک بھی وحدان کے جیسا ہی ہوڈ پہنے ہوا تھا۔ واہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ ہانیہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا، ہاں یار واقعی ہے۔ میلوڈی نے بھی اس کی تائید کی۔ سب لوگ باہر نکل کر سائیڈ واک پر چلتے ہوئے آس پاس کے مناظر دیکھنے لگے۔ میلوڈی، وہ دیکھو، ہانیہ نے ایک عمارت کی طرف اشارہ جس پر 3D لائٹ کی وجہ سے ایک ڈریگن اڑ رہا تھا۔ ہانیہ کو ایکسائٹڈ دیکھ کر وحدان مسکرایا، جبکہ ان سب کو مسکراتا دیکھ کر ہانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وحدان اس آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا۔ ایمان جینس اور سویٹر پہنے ہوئی اس طرف ہی آ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ اس کی کوئی انگریز دوست جسے ایمان جیسے ہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی مگر چہرہ مصنوعی لگ رہا تھا، شاید پلاسٹک سرجری تھی یا انجیکشن وغیرہ لگوائے گئے تھے، بال ریڈ سے رنگے گئے تھے۔ ہیلو تم لوگ بھی آئے ہو؟ میں بھی یہاں ذرا انجوائے کرنے آئی ہوں، گھر میں بور ہو گئی تھی، اور ہاں یہ میری دوست جیکسا ہے۔ اور جیکس یہ میرا دوست وحدان ہے، ایمانہ سب کے کہتے ہوئے جیکس کو تعارف بھی کروایا دیا، جبکہ جیکس صاحبہ وحدان کو ستائشی نظروں سے دیکھنے میں مشغول تھی۔ ہانیہ ان کو دیکھ کر مسکرائی اور چہرہ پھر اس ڈریگن والی دیوار کی طرف موڑ دیا جہاں ڈریگن کو آگ اگلتا دیکھا جا سکتا تھا۔ جو میں آگ اگل سکتی تو شاید یہ دونوں جل کر بھسم ہو چکی ہوتی، شاید نہیں، یقیناً، اس نے مسکرا کر سوچا اور پھر سے ایمان اور جیکس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ چلتے ہوئے خوبصورت مناظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، ہر چیز روشنی میں نہا چکی تھی، درختوں پر لگی برقی کیمکوں میں ٹمٹما رہے تھے، میلیم ویل کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہانیہ کی نظر آسمان پر چاند پر پڑی، پھر ان ستاروں پر جو چاند کے پاس تھے، وہ بھی چاند کی طرح بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ قدرت کی خوبصورتی دیکھ کر وہ مصنوعی حسن مان پڑ گیا۔ ادھر وحدان نے اپنے آس پاس ہانیہ کو ناپاک نظریں اٹھا کر روح میں دیے پاؤں اترنے والی کو ڈھونڈنے لگا، پھر وہ آسمان پر کچھ ڈھونڈتی دکھائی دی۔ اپنے تمام تر معصومیت کے ساتھ وہ اس کی سمجھ چل پڑا، مگر کسی اور کی نظروں نے بھی ناپسندگی سے یہ منظر دیکھا۔ حسد تھی یا جانے کیا تھا جو ان آنکھوں میں چنگاری جلا گیا تھا۔
क्या ढूंढ रही हो हानिया? वहीदान ने इसके पास जाकर बचा। कुछ नहीं, बस आसमान को देख रही हूँ, कितना खूबसूरत है ना। ये आसमान की रोशनियां हीरे को मान लगती हैं। आओ आप भी देख लो। बिजनेसमैन के ये मनाजर मसनूई रोशनी से ज्यादा दिलकश है। हानिया अपनी आंखों को थोड़ा सा फेर कर डरमाई अंदाज में बोली। पीछे गाने की धुन की आवाज थी। येलो डायमंड इन द स्काई, वी आर स्टैंड साइड बाय साइड, As you shadow cross me, but it takes to come alive। वरदान इसके अंदाज में मुस्कुराया, नीली आंखों में चमक उभरी। हाँ, आप ठीक कह रही हो, बहुत दिलकश नजर है। इसने हानि के चेहरे की तरफ देखकर कहा, जिस पर पड़ती हुई हुक्मों की रोशनी इसको और खूबसूरत बना रही थी, जो उसके दिल पर अपना नाम रोशन स्याही से लिख चुकी थी, जो इसके दिल पर जगमगा रहा था। कुछ देर खामोशी से खड़े बादलों और चांद तारों की आंखों में चली देखते रहने के बाद वजदान किसी शहर के चेहरा से बोला, क्या तुम इस बिजनेस मैन के साथ पूरी जिंदगी यूं तारे देखना पसंद करोगी? विधान के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इसके हाथों की बकवाहट वाजिया थी। हानिया कुछ देर यूं ही आसमान की तरफ फ्रीज होकर देखती रही, फिर इसकी नजरों ने वजदान के चेहरे का एहतमाम किया। क्या बस इतना बोलकर वो खामोश होगी? हानि के लिए यकीन मां करना मुश्किल था कि क्या तुम मेरे साथ बूढ़ा होना पसंद करोगी? इसने इसके चेहरे की तरफ देखा। हानि को संभलने में कुछ देर लगी, फिर इसने रुख वजदान की तरफ मोड़ा। चेहरे के इसके जज्बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। वहीदान, मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मगर आप और मैं बिल्कुल आपके इस दुनिया के दूसरे कोने से हैं, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर मेरे पेरेंट्स का फैसला बहुत ज़रूरी है। आप इनसे बात कर ले, मैं वैसे भी 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। हानि ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। हानि, कोई भी फैसला करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स के बाद ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारा। यहाँ की ज़िंदगी सबको मुतासर करती है, मुझे भी किया था। बस मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सब जानकर फैसला करें, मगर एक बात पॉजिटिव इंसान हूँ। आप मेरे लिए बहुत उम्मीद रखती हैं, तो शायद मैं आपके इर्द गिर्द ज्यादा फ्रैंक होते लोगों को पसंद ना करूँ। इसके अलावा और कुछ देर रुका। मैं बिजनेस मीटिंग या पार्टनर्स में शराब पीने को बुरा नहीं समझता था, आराम से पी लेता था। हर तरह का ब्रांड मेरे पिछले पेंट हाउस में मौजूद था। फिर एक दिन एक पार्टी के दौरान एक लड़का बैठा था, तो मुस्लिम था, जमाल नाम था। वो माजी की धुन में कहीं खोया था। क्या तुमने वो कॉल पढ़ा है कि बुज़दिल अपनी मौत से पहले कहीं बार मरता है? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? वहीदान ने वाइन कैसे लेते हुए पूछा। क्योंकि तुम बुज़दिल हो। वो मुस्कुराया। वहीदान के चेहरे पर सख्ती उभरी। हम सब बहाने कर लें, सब पीते हैं, फरसोदा रवायत वगैरह वगैरह। हम ना पीने का कहा गया है वहीदान शाह, हमें बहाने करने का इख्तियार नहीं। आप मेरी बात शदीद बोर हो रहे होंगे। आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? वहीदान के बाजार कहवा सामने लड़का देख रहे हैं। इसने एक अंग्रेज की तरफ इशारा किया। मैंने जब शराब से मना किया कि मैं नहीं पीता, इसने आपकी तरफ इशारा कर कहा कि मुझे आप लोगों के मुंतफिक समझ नहीं आती। वो कुछ शर्मिंदा सा बोला। आपने कभी इसको छोड़ने की कोशिश की? वो लड़का बोला, हाँ की थी, पर कर नहीं पाया। वहीदान का दिल सुलाकर कहा, गुनाह इन लोगों को लज्जत महसूस होती है जिनका नफ्स कमजोर हो, वरना गुनाह से रुकना मुश्किल ना होता। जिहाद नफ्स को इसलिए मुश्किल जिहाद कहते हैं, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी से ज्यादा तरक्की कर जाएं तो खुद को अकड़ कर चलने से और गुरूर करने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद को बहुत कंट्रोल और मेंटेन करते हैं, बहुत गुरूर करते हैं। आप तो इतनी ताकत नहीं रखते कि अपने आप से लड़ सकें। गुरूर किस चीज़ का, ताकत कौन सी? अपने गम को रोकने के लिए अपने दिमाग सुन कर लेना, इसके यही कहते हैं गुरूर का सर नीचा। आप लोगों को बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, आप खुद को क्या समझते हैं? कहते ही वो खड़ा हुआ। इसके लहजा हर जफर से पाक था। चलता हुआ किसी जमाने में आपका फैन था, वो कहता हुआ मुड़ गया, पर वहीदान के गुरूर की इमारत को जमीन बोस कर गया। वहीदान ट्रांस की हमीज कफीस से बाहर निकला। अब फैसला आपके हानिया। इसने हानि की तरफ देखकर कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये बताया। बुरा भी लगा कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी, पर मैं आपके पास की वजह से आपको जज नहीं कर सकती। ये गलतियां तो हम सब ही करते हैं, मैं भी अच्छी नहीं इतनी, कभी हसद मुझ में भी आ जाती है। मैं भी कभी कभी चुगलखोर करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना करूँ, पर खुद से लड़ना आसान नहीं होता। ना तो फिर गुनाह ही होते हैं, छोटा हो या बड़ा। लेकिन इसने जेस की तरफ देख कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीदान इसकी आंखों को मौफून समझ कर बोला, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब मैं घर चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। घंटे का कहा है घर में, 8:30 तक घर पहुँचते हैं मुझे। इसने एक बार फिर चांद की तरफ देखा। चेहरे पर आते बालों को पीछे की अरसा और कोट की जेब में हाथ डालते मेलोडी की तरफ चल दी। वहीदान की आंखें मुस्कुरा रही थी, वो भी इन लोगों की तरफ चल पड़ा। वह मेलोडी हानिया बाकी सब लोगों के पास पहुंचा तो हानिया जैक्स को घूरने में मशहूर थी।
और जैक्स वहीदान को। वहीदान ने हानि की नजरों के ताक़ब में देखा तो समझ में आने पर अपने चेहरे पर दर आने वाली मुस्कुराहट को बामुश्किल रोक कर मुहर्रक फेर लिया। हानिया आपको अनसिक्योर फील ना करें, ईमान मेरी दोस्त है बस। जबकि जैक्स जैसे लोग मैं रोज देखता हूँ, अगर मुझे आप पसंद न होती तो शायद मैं आपसे बात भी न करता। फिर जरा शरारत से मुस्कुराए। वैसे जैक्स होना जेलस होना बनता भी है, बंदा इतना हैंडसम हो तो। वहीदान ने हानिया को टेक्स्ट किया, जिसके जवाब में हानिया ने अपना चेहरा उठाकर अपनी आंखें छोटी करके एक जबरदस्ती की जेलस सी मुस्कुराहट इसके जवाब में दी और मुंह बना लिया। इस बार वहीदान ने दांतों को नुमाइश की थी इसकी मासूम सी हरकत देखकर। सुना है बोलने तो बातों से फूल छिड़कते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुनना है रब बेरबत है इनको खराब हालों ने, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है इसे भी शहर व शायरी से शौक़ है, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के दिखाते हैं। सुना है दर्द की गाह ये है चश्मा नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है शजर है उसकी गजल सी आंखें, सुना है इसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर कर देखते हैं। और लड़ी के साथ कैब में बैठ कर चलेगी। वहीदान की आंखों की दूर तक तकब किया और वहीदान के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट किसी की आंखों में जहर घोल गई। हाँ, 3 साल बाद शावेला में कल होने वाली तकरीब के लिए तैयार व जोर और शोर से जारी थी। बीजान ने ज्यादातर रिश्तेदारों को इस तकरीब में नहीं बुलाया था, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। किसी का जूता मैच नहीं कर रहा था तो किसी को अपनी जोली की फिक्र थी। मैंने कहा था कि मिक्स मिठाई हो, ये तमाम गुलाब जामुन और बर्फी अलग ले लो और लड्डू लाए ही नहीं। जरीना बेगम ने शायान शाह की क्लास लेते हुए कहा भी था कि अपने कपड़े सारी चीजें तैयार करके रखो, कल शाम से बोल रही हूँ, पर नहीं, जो इनके कान पर जूं रख गए। शाहजहां बेगम घड़क में दाखिल होते हुए बोला, रेंगने की भी नहीं है। जरीना और शाहजहां बेगम ने इनको सवाली नजरों से देख दिया। ये मुंह पर प्लास्टर कर चुकी है ना, ये छोटे से छोटे जरासीम भी इनको केमिकल्स की वजह से इनसे दूर फाही से कोच कर चुके होंगे। शियान का कहना था कि अनाया की कंघी इसके कंधे पर आकर लगी। तुम किस खुशी में निशानेबाज बन के घूम रही हो? शयान ने अपना कंधा सुलाते हुए कहा, क्या होता है, तमीज से बात किया करो, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। अनाया चढ़कर बोली, मलका आलिया डरती आप निशानाबाज बनी क्यों घूम रही हैं? शयान ने अपनी आवाज थोड़ी बारीक करके कहा, मामा आप देख रहे हैं कितनी बदतमीजी कर रहा है। अनाया जरीना बेगम की तरफ मुतवज्जह होकर बोली, चुप करो, तुम लोग दिमाग ही खराब कर देते हो। शाहजहां बेगम बोली, इस बार अनाया तुमने हानिया को फोन किया था? दुआ ने पूछा। हाँ, इसकी पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, परसों चलेंगे, जबकि शिजा और रबाब आ रही हैं, कल इसने खबर दी। हाँ ठीक है, दुआ ने फीके से लहजे में कहा। तभी वहीदान जीन्स और ब्लू रंग की शर्ट में पहने फूल पर वार करते हुए गुजरा। वहीदान बच्चे जरीना बेगम ने इसको रोका, इसने 1 मिनट का इशारा किया, फिर फोन पर जी अच्छा ठीक है कहकर बंद कर दिया और इनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। बच्चे तुम्हारे कपड़े मैंने तैयार करवा दिए हैं और जो तुम्हारी दुल्हन के सेट खरीदा है वो भी एक बार देख लो कि ठीक है कि नहीं। जरीना बेगम बोला, अच्छा लगेगा इस पर सब? इसने बेजानी से बोला, मेरा मतलब अच्छा ही होगा, मुझे काम में चलता हूँ। घबरा कर बोलता बाहर चल दिया। जरीना बेगम और शाहजहां बेगम मुस्कुराई जब सब होंकों की तरह ये सब देख रहे थे। वजीबन की भी निकाह है, सब ने एक साथ बोला। हाँ अब जाओ सब तैयारी करो। शाहजहां बेगम बोला, लड़की से कल मिल लेना, मगर आपने बताया ही नहीं। दुआ बोली, तो तुम लोगों ने कौन सा सुन लेना था? अब दिमाग न खाओ, जाते हो या जूता उठाओ? जिस पर सब ने अपने अपने कमरे को रोक किया। छुपे रुस्तम ये कहते ही शयान ने खबर रसाई अदारा होने का फर्ज निभाते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ लगाई। जितने बड़े हो रहे हैं इतना ही दिमाग गाठ रहा है इनका। जरीना बेगम बोली, अरे लड़के नीचे आओ, मिठाई कौन लाएगा? वो पीछे से बोली, इस लड़के से कोई काम नहीं होगा, मैं अरबाज से कहती हूँ। इन्होंने कहते हुए फोन उठाकर अरबाज को हिदायत देना शुरू कर दी। फरवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा था, सूरज की किरणें हर सब फिर रही थी, बादल सब अपने रुख पर चलते हुए फूलों की कलियों से अटकियां करते हुए बहार के मौसम की खबर दे रहे थे। जुल्करनैन हाउस में भी आज गुजरे दिनों से ज्यादा हलचल थी। समिया बेगम के मुलाजमों को हिदायत देती आवाजें हानि के कमरे तक पहुंच रही थी। हानि अपनी बेड के साथ टेक लगाए हिला में देखती जा रही थी, आंखें हर जज्बे से आ रही दिखाई दे रही थी। इन आंखों में एक आंसू नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानिया वापस अपने हाल में से वापस आई। हानिया, बच्चे जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, फिर 10 बजे तक हमें पार्लर के लिए भी निकलना है और वहाँ से शामिला ही जाना है। समिया बेगम हिदायत देते हुए अंदर आई। जी अच्छा, हानिया की कर उठ बैठी। समिया बेगम इसकी जर सी शक्ल देखकर पास आकर बैठी। हानिया, बच्चे आप फिक्र न करो, एक दिन सब लड़कियों ने ही जाना होता है अपने माँ बाप अपने
घर आंगन को छोड़कर एक नए आंगन को बसाने, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं हम तुम्हें भूल जाएंगे। जो कभी जिंदगी में कोई मसला हो या रहनुमाई लेनी हो, तो जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मौजूद होगी। सुमिया बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मामा अभी तो बस निकाह है, आप तो यूं बातें कर रहे हैं, रुखसती हो। हानि की आवाज बढ़ गई, जिस पर सुमिया बेगम ने इसको हल्की सी जीत लगाई। आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी तो कुछ समझोगी। अब बिस्तर छोड़कर मुंह हाथ धोकर 15 मिनट में देखते हैं डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सुमिया बेगम कहते हुए उठ खड़ी हुई। मामा बाबा कैसे हैं आप? इसने बेड से उठते हुए पूछा, जिस पर सुमिया बेगम वापस बेड पर बैठ गई। बेहतर है, इन्होंने नजरें फेर कर कहा, वो रियाज साहब को अपने घर ही ले आए थे। मम्मी ऐसा कब तक चलेगा? अब तो बाबा को माफ कर दें। हानिया ने इसके पास बैठती हुई कहा, माफ तो मैं कर चुकी हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, एकदम से ये सब ठीक नहीं हो सकता, कुछ माह लगेंगे नॉर्मल होने के लिए। वह कहकर उठ खड़ी हुई। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन 15 मिनट वो हानिया को तनबीह करती हुई बाहर चलेगी। वो सुल्करनैन साहब के कमरे में दाखिल हुई तो वो भी तैयारी कर रहे थे। इनके दरवाजा ना करके आने पर रियाज साहब थोड़ा रंजीदा तो हुए पर छुप आ गए। नाश्ते के लिए बुलाने आई हूँ, वो कहते हुए वापस मुड़ने लगी, लेकिन रियाज साहब की आवाज पर रोकी। समी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे या हानिया से गाफिल रहा हूँ? इस सारे अरसे तो ये गलत है। मैं बेशक तुम लोगों से मिला न हूँ, मजबूर था, पर मैंने बराबर खबर रखी है कि कहीं हानिया को कोई मसला तो नहीं है। इसने कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी में दाखिला ली है? तुम्हारे फ्रेंड का भाई जो तुम्हें पाकिस्तान आने के बाद तंग कर रहा था, एकदम से इसने हरकतें कैसे रोक दी? सुमिया बेगम हैरानी से इनकी बातें सुन रही थी। अगर अपने से मोहब्बत हो तो इनको बताए बगैर इनके मसले हल किए जाते हैं, एहसानों की टैग नहीं लगवाए जाते। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चल दिए। शाहवेला में आज भी सूरज की रोशनी बरस रही थी। बाग में लगे फूल आज से ज्यादा तरोताजा थे। शाहवेला की मलकीन भी आज सुबह सुबह उठ चुके थे। वहीदान भी आज हदाफ मकबूल कोई 10वीं दफा आईने में खुद को देख चुका था। उफ तुम अच्छे लग रहे हो वहीदान, यूं 10 एज लड़कों की तरह तैयार होना बंद करो। वहीदान ने मुस्कुराते हुए आने में देख कहा, एकदम वक्त क्यों नहीं गुजर रहा? वो घड़ी पर 10 बजता देखकर बोला। इसके फोन की रिंगिंग बजी तो मेगन का नंबर देखकर रिटर्न की। हेलो हेलो सर, कैसे हैं? दरअसल मैं आपको आज तंग ना करती सर, लेकिन बैंक की ट्रांसलेशन में कोई गलत लग रहा है और कोल्ड क्लाउड कंपनी की स्टेटस में भी खपलू लग रहा है। कोई चीज हमारे कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रही। मेगन की आवाज स्पीकर पर बुरी हुई। धान ने आंखें बंद की और माथे को उंगली और अंगूठी की मदद से दबाते हुए बोला, मेगन देखिए आज मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ दिन तक मैं लंदन आकर देखता हूँ। आप इस अकाउंट से फिलहाल कोई ट्रांसलेशन मेरी इजाजत ना करें। आप बताएं कि अब आप ऑलरेडी आई क्यों नहीं? मैं आपको एक हफ्ते पहले ही बता चुका था सर। दरअसल मेरी और एक ने शादी कर ली है, तो हम लोग आपकी शादी अटेंड करेंगे। मेगन की बात सुनकर इसके माथे को दबाता हाथ रुका। क्या वाकई ही? ये तो अच्छी बात है, मुबारकबाद आप तो भी, आपको भी, पर जेक ने मुझे खबर ही नहीं होने दी। अब तो लंदन आने ही पड़ेगा, कुछ दिन में देखता हूँ मैं। ओके फिर बाय। इसने कहते हुए फोन रख दिया और फिर बाहर का रुख किया, जबकि शाहवेला की दूसरी मंजिल के तीसरे कमरे में होने वाला शोर गुल नीचे की मंजिल तक सुनाए जा सकता था। चौथे किधर हैं तुम्हारे जूते, किधर हैं तुम्हारे? और बाब ये वाला झुमके पहन कर देखो। शिजा, ये ब्यूटिशियन ने ज्यादा ही मेकअप नहीं कर दिया? या मैं दुपट्टा देखा है किसी ने? कोमल तुम कब तक पहुंचोगी? अनाया ने फोन पर पूछा। बस थोड़ी देर में जवाब आया। शिजा, अनाया, रबाब, दुआ सब तकरीबन एक साथ बोल रही थी। इसी में तरफ ग्राउंड फ्लोर पर बने सामान के कमरे में भी शोर सुनाई जा सकता। यार मेरे ससुराल वाले अभी तक आए क्यों नहीं? जवान ने घड़ी को देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा। पता नहीं जैन ने अपने हाथ पर बनी घड़ी का टाइम गल देखकर तपा हुआ बोला। तब ही इसकी नजर शिरोज पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था और साथ गनगना रहा था। ये निकाह हमारा है, तुम्हें किस चीज की खुशी हो रही है? जैन ने के पूछने पर शिरोज गड़बड़ाया। अरे भाई का निकाह है, पहली दफा कोई ऐसी तकरीब देख रहा हूँ। घर में जरा बाहर देख कर आता हूँ, शायद कोई और काम हो, कहते हुए बाहर निकल गया। बाहर जरीना बेगम और शाज़मा की आवाजें सुनी जा सकती थी। हाल से सोफे थोड़े पीछे कर दिए गए थे। 3 इतराफ में छोटे से सेट के सजाए गए थे। हर एक के दरमियान में हल्का मुकम्मल कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, जो पर्दे की तरह था, ताकि निकाह के वक्त एक साइड पर दूल्हा और दूसरी साइड पर दुल्हन। ऑफ वाइट रंग के पर्दे थे, जिनके किनारों ऊपर के किनारों पर सफेद फूल लगे हुए थे। सेट के किनारों पर गाउन तकली लगाई गई थी। शाज़मा बेटा फोन करके देखो, 11 बज रहे हैं, बीजान बोली। तभी बाहर गाड़ी ने हारन की आवाज सुनाई दी। जरीना बेगम बाहर आई, इनके पीछे ही बीजान शाज़मा भी आई। हानिया और कोमल लोगों की गाड़ियां आगे पीछे थी। वो दोनों शाहवेला के अंदरूनी दरवाजे के सामने रुकी। हानिया पहले कभी शाहवेला नहीं आई थी। आज तबीयत अजीब सी हो रही थी, जिसको वो अपने नाम देने से कासिर थी। हानिया को घर से बाहर लाया गया। इसने चेहरे पर
पिंक रंग का कपड़ा डाल रखा था और पिंक कलर ही पहना हुआ था। जेस की आंखों की तपश महसूस हुई तो इसे अपनी पलकें चंद सेकंड के लिए उठाई, फिर नीचे कर ली। इधर खिड़की पर खड़े वहीदान ने एक लंबा सांस खारिज की। ऑफ वाइट कुर्ता पर अपनी सिंधी शाल दुरुस्त की। अंदर आके हानिया को और कोमल को भी इनकी जगह पर बैठा दी गया। कोमल सिल्वर रंग के शरारा पहने हुई थी। तब ही इनाया को भी दवा और अमरीन लेकर आई। बाकी फौज भी इनके पीछे आ रही थी। तब ही शयान का पाँव पर अमरीन की हील आ गई। आउच, आंखें हैं कि बटन। वो पाँव मसलता हुआ साइड में हुआ। चुप करो, इतनी भी नहीं लगी, शीजा बोली। आओ, आवाज पहुंचाते हुए हानिया ने अपनी पलकें उठाई। नजर इनाया लोगों से होती हुई सीधा सीढ़ियों उतरते मैदान पर पड़ी। हर चीज फ्रीज हो गई। यूं महसूस हुआ कि वक्त रुक गया है। जेन में छिड़के चलने लगे, कान साइंसें करना शुरू हो गए। हानिया एकदम से कांपी। हानिया, बच्चे ठीक हो? समिया इसको देखकर आ गई। हानिया ने सिर्फ सर हिलाने पर दफा किया। हानिया को गुस्से से बुरा हाल होने लगा। एयर कंडीशन कमरे होने के बावजूद दम घुटने लगा, दिमाग सुनने लगा। अरे, शिजा की आवाज पर सब ने मुड़कर देखा। हानिया, सारी फौज ने फिर मुड़कर हानिया को समझ देखा। वजी बाई की दुल्हन सब हैरानी से देखा। मैंने कहा था ना, काले चने पक रहे हैं। कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वो रबाब के कान में बोली, चुप, तुम लोग जानते हो भी जान जो इसकी बात से अनजान थी। इस अब वजदान की गेम समझ आई तो गुस्से से घूरा, जिस पर वजदान मुस्कुराया। जी, ये हमारी गैंग का 5वां बंदा है। शिजा ही बोली, पता नहीं ये लड़की कभी सीधा जवाब देंगी या भी नहीं। बेइज्जत होता रहूंगा, अरसल ने सोचा। दवा शिजा हानिया से मिली, मगर हानिया की पोजीशन में कोई फर्क न आया। निकाह होने पहले कोमल और जमान का निकाह पढ़ा रहे थे। इस दौरान हानिया को महसूस हो रहा था गोया टाइम बम हो जो इसकी टिक टिक टाइम की घंटे की पता दे रहे हो। वहीदान भी पर्दे के इस साथ बैठा, मुस्कुराती नजर से खुशी से दमकता चेहरे। इनके निकाह की घड़ियां पहुंची। वहीदान के लिए आज जश्न बहाना थी। चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट। आज मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी या एक नए सफर का आगाज था जहां हम सफर के संग करना था। इधर हानिया की हालत गैर हो रही थी। दिल कर रहा था कि पर्दे की जगह कॉन्ट्रैक्ट की दीवार खड़ी कर दे। पहले वहीदान से पूछा गया तो इसने पर्दे के पार देखते हुए इसने इस बाबे में जवाब दिया। हानिया से पूछा जा रहा था। इसके जवाब न देने पर दोबारा पूछा गया। इसकी पलकियां उठी। अपने वालिदैन की खुशी भरे चेहरे पर नजर जा ठहरी। एक आंसू जो आंखों के बंद तोड़कर निकला। इजाद व कबूल का मंजिल तय हुआ और चिड़िया अपने बाबल की गली छोड़ के उड़ गई। अनाया और जैन का निकाह होने के बाद सब जोड़ियों को बाहर बागीचे में बैठा दिया गया, जहां खाने का इंतजाम भी था। कोमल को जमान के साथ बैठाया गया। कोमल बेचारी का चेहरा सुर्खंगार हो चुका था क्योंकि जमान की भतीसी बाहर थी और वो कोमल को साथ लिए मुख्तलिफ पोज बनाने में मशगूल था, जिस पर इसकी भी जान की सूरतें सुनने को मिल रही थी। पर वो जमान ही गया जो आए सुन ली। कोमल, इधर देखो। जमान ने सेल्फी लेने के अंदाज में कैमरा ऊपर किया। जमान जी, आप बस कर दी। कोमल को समझ न आया कि कैसे बुलाए तो खास बीवी वाले अंदाज में बोली, उफ जमान जी, बस इसी अंदाज पर तो निसार हुए हैं। वो भी डाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। जमान, आपकी बात। जरीना बेगम ने आंखें दिखाई तो जमान थोड़ा बायज आया। अनाया और जैन भी साथ साथ बैठे थे। जैन खुश था पर जमान की तरह उछल नहीं रहा था। जैन, अनाया ने बोर होते हुए कहा। हाँ बोलो, थोड़ा तमीज से ही। जैसे जैन, मेरी बात सुने। जैन ने दबने के लिए कहा। जैन, मेरी बात सुने, मुझे भूख लग रही है, जरा जाकर बिरयानी की प्लेट ही ले आए। हम सब लोगों को भूल ही गए हैं, अनाया ने जैन से कहा। जाकर खुद ही खा लो, बंदे का मूड ही खराब कर दिया। जैन के सारे रोमांस पर अनाया ने पानी डाल दिया। जैन की बात सुनकर अनाया ने हसरत से खाने की तरफ देखा। वहीदान और हानिया की तस्वीरें शायान अपने कैमरे में अक्सर बंद कर रहा था। वजी भाई, थोड़ा मुस्कुराए तो सही। जिस पर मुस्कुराने की जगह इसने दांतों की नुमाइश करो। हानिया के पीछे सोफे पर बाजू रखा, जिस पर हानिया को तब चढ़ी पर खामोशी से बैठी रही। जितनी भी बदगमानियां सही वो महरम था, जजक फितरी बात थी। बीजान और बाकी सब बच्चों को छोड़कर अंदर जा चुके थे। घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। आईलाइन में मुख्तलिफ महफिल जमी थी। बाहर भी बरकी के हुक्म से सजाया गया था। अरे दूल्हा, आज गाना सुनाएंगे, अरबाज ने जानबूझकर तंग करते हुए कहा। फिर चोरी से एक नजर दुआ पर डाली और नजरों का जवाबिया बदल दिया। काश कोई इससे भी पूछ लेता तो वो बेहोशी में पूरी शायरी की किताब ही लिख देता। जमान ने सबसे पहले गाना सुनाया, जिस पे कोमल बेचारी चेहरा झुकाए बैठी रही। जैन ने बस छाए शेर सुनाते पर इत्तफाकी इश्क हमें बर्बाद न कर, रह चुप मगर इज़हार तो कर कि इतनी मोहब्बत तुमसे है, चर्चा न कर, इकरार तो कर। जिस पर अनाया ने लहाज बरताक रखकर पास बड़ा तकिया जो अंदर से मंगवाया गया था जैन को दे मारा। वे शर्म ना हो तो साथ बढ़ाई। अब वहीदान की बारी थी, जिस पर सब ही पर दोष थे कि ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। मुझे गाना से कोई खास लगाव नहीं, पर मैं गजल सुना सकता हूँ। थोड़ा सा झिझक कर ना महसूस अंदाज में हानिया के करीब हुआ, जिस पर वो थोड़ा पीछे खिसकी पर बेसुदा। जिस पर इसने बेबसी से और गुस्से से वहीदान को देखा जो इसे नजरअंदाज कर दिया।
میرے بابا سناتے تھے، ان کی پسندیدہ تھی۔ اس کی بات تھوڑی نیم ہوئی، پھر سر جھٹک کر ہانی کی طرف دیکھا۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے۔ پہلے مشہور ہوئی تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا، آپ کے واسطے ہم نے یہ بھی کیا۔ ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے، ہم نے جب آپ کی دیکھی دلچسپیاں، آگے ہم میں بھی کچھ تبدیلیاں، ایک مصور سے ہوگی دوستی، اور غزلیں بھی سنانے لگے۔ آپ کے بارے میں پوچھے بیٹھے، کوئی کیا کہے، ہم سے کیا بدحواسی ہوئی، کہنے والی جو تھی بات وہ کہہ نہ سکے، جو بات جو تھی چھپانی بتانے لگے۔ عشق بے گر کرے، عشق بے درد کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی، اب سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ آخری لائن اس نے ہانی کی آنکھ میں جا کر کہا تو وہ جو سننے میں مگن تھی ایک دم بے جھجک کر اپنی نظریں جھکا لی۔ وحیدان نکاح کے بعد ہانیہ سے بات کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہا تھا، تب ہی وہ دعا کے ساتھ جاتی دکھائی دی، وہ بھی وحیدان کے کمرے میں۔ وحیدان حیرت سے ان کے پاس پہنچا تو دعا جو اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ وجی بھائی آپ پلیز ادھر رکنا، ہانیہ اندر ہے آپ کے روم میں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، آپ کی منقوہ ہی ہے، مجھے ماما نے کچھ کام دیا تھا، میں وہ کر کے آتی ہوں۔ دعا وحیدان سے بولی، پہلی بات میرا نام وحیدان ہے، دوسرا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بچے آپ جا کر چچی کی بات سن لو، میں یہاں ہی ہوں۔ اس نے مسکراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے سندیجہ لینے ہوئے کہا۔ وحیدان کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی، وہ جو اپنا دوپٹے کو سیٹ کر رہی تھی، کسی کی موجودگی کے احساس سے موڑی۔ وحیدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ وحیدان کے کمرے میں بلیک تھیم تھا، کمرے کو ایک گلاس وال کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے درمیان میں شیشے کا دروازہ تھا، ایک بڑا سا پینٹنگ تھا جو گلاس وال کی بار تھا، دیواروں پر بھی بلیک کلر استعمال کیے گئے ڈیزائنیں بنائے گئے تھے۔ آپ ہانی کے لب پھڑپھڑائے، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا بولے۔ جی میں وحیدان آپ کو شور نامدار، اور ساتھ روم کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے، ہانیہ نے سائڈ سے گزرنے کی کوشش کی پر وحیدان نے ناکام بنا دی۔ ہانیہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی پر گلاس وال کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ہانیہ بس ایک بار کہہ دو کہ تم میری ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، یقین کرو میں ہر الزام اپنے سر لے لوں گا۔ اپنے بازوؤں کو ہانی کے دونوں اطراف ٹکاتے ہوئے ہانیہ پر جھکا۔ ہانیہ کو لاکھ بے اعتباری تھی وحیدان پر آج وہ اس کا محرم تھا، وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وحیدان نے اس کے گریل کیے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور جھک کر اس کے گال پر محبت کی مہر ثابت کی۔ ہانیہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ وحیدان کے اس کے ماتھے پر جھکا تو ہانیہ نے اپنا چہرے کا رخ دوسری پھیر لیا، جس پر وحیدان نے مسکرا کر گال پر پھر سے محبت کی نشانی چھوڑی۔ وحیدان کے اس بہکے انداز پر ہانیہ کے ہاتھ بکوا تھے۔ ہانیہ نے خود توجہ کے وحیدان کو پیچھے دھکیلا۔ آپ سے کسی اچھی چیز کی امید نہیں تھی، آپ نے دھوکے سے نکاح ہی کر لیا، آپ کو پتا تھا میں راضی نہیں ہوں گی، نہ ہی میں بھی، وہ ہمت کر کے لرزتی آواز میں بولی۔ ہانیہ کی بات سن کر وحیدان واپس طرف دنیا میں لوٹا۔ میں بھی انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں محبت کرتا ہوں تم سے، کسی لڑکی کو پہلی نظر ڈال کر دوبارہ نہیں دیکھا، ایک تم ہی تھی جس کے لیے دل ہار بیٹھا، میں نے اعتباری دکھائی تو محترمہ آپ نے کون سا اعتبار کر لیا مجھ پر؟ ہاں غلطی میری تھی، پر ایک بار آ کے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس کے کندھا چھوڑ کر بولا، پر پھر تھوڑا پیچھے ہو کر گہرا سانس لیا۔ تم سچ تو رہنے ہی دو، اپنے کیے پر پردہ مت ڈالو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بے اعتباری ہی تھی، پر معصوم سی ہانیہ بقول وحیدان کی شکل پر معصوم سا غصہ دیکھ کر مسکرائے۔ آج یہ باتیں لے کر بہت ہوگی، اب تو بری زندگی ہے، اور تم کیا ہوتا ہے مانا میں لندن رہا ہوں، پر اگر جانے وحیدان مجھے شاہ جی کہو گی تو اچھا لگے گا۔ جانے وحیدان، وہ اس کے چہرے پر آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے ارستے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں جو اس کو ہمیشہ شہر میں جگڑ لیتی تھی، آج بھی اس کو مسحور کر دیا۔ ہانیہ نے اس کے لمحے سرخ ہنگار چہرے لیے پیچھے ہونے کی کوشش کی، پر پیچھے دیوار نے ناکام بنا دیا۔ تمہیں سچ جاننا ہے نا کہ میں بتاتا ہوں کہ اس شام کیا ہوا تھا۔ جب میں کافی شاپ میں پہنچا تو ہانیہ دعا کی آواز پر پیچھے ہٹا، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں آ رہی ہوں، بولو تم، وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ تم نہیں شاہ جی، وہ اس کی بے ادبی پر تلملایا۔ ہانیہ آپ بھی جاؤ، ایک تو وحیدان بھائی پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے ہیں، اب تو بیوی ہو، چلو اگلی ملاقات میں فرصت سے بتاؤں گا۔ وحیدان کی بات سن کر جلدی سے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شرارہ پاؤں میں آنے سے وحیدان کے حصارے میں آ گئی۔ گرنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی بتا دیتی، میں آپ کو تھام لیتا۔
वहीदान इसके सुर्ख चेहरा देखे महफूज हुआ। तुम? हानिया ने इसके हिसार से निकल दो कहा। तुम नहीं शाहजी, वहीदान मुस्कुराते हुए बोला। हानिया अंदर ही सो गई हो क्या? वहीदान भाई का रूम है, बाहर निकलो। दुआ ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। आ रही हूँ बस, वो कहकर बाहर बढ़ गई और वहीदान मुस्कुराता हुआ पीछे की तरफ चलता हुआ बेड पर गिरा और हानिया के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। सुबह सूरज तवील हो चुका था। आज 3 दिन बाद सब यूनिवर्सिटी जा रहे थे। आज भी शाबेला में काफी हलचल थी। मामा जल्दी से वो जूस पकड़ा दें, बहुत देर हो गई है। आज अनाया ने सैंडविच का टुकड़ा खाते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि जल्दी उठो, तो सब ही इतने सुस्त रुकाए लोग के जवाब नहीं। गद्दे घोड़े सब बेच कर सोते हैं। जरीना बेगम ने अनाया को बड़ा सा नवाला निकलते हुए देखकर कहा। मामा वो मैं थक गई थी बस इसीलिए। नाया ने जवाब में कहा। बच्चे तुम सब कौन सा अफ्रीका पैदल चल के गए हो कि दो दिन थकन ही नहीं उतरी? जरीना बेगम का गुस्सा देखकर अब के नाया खामोशी रही। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाहर आ गई, लेकिन गाड़ी में अपने लिए जगह न देखा कर और परेशान हो गई। अब कहाँ जाऊँ? अमरीन तुम किस उशवे में बैठी हो? यहाँ से 5 मिनट तो लगते हैं तुम्हारे कॉलेज को। कौन सा लखनऊ में है तुम्हारा कॉलेज? नाया अमरीन से हाथ हुई। अभी मेरे पाँव में दर्द है, आपको जैन भाई छोड़ देंगे, अमरीन ने कहते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अब जैन को कौन बुलाएगा? इसने परेशानी से घड़ी पर टाइम देखा, तब ही जैन अंदर आता दिखाई दिया। वो फोन पर मैसेज करता अंदर जाने लगा तो नाया को तैयार हुआ खड़ा देखकर रुका। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? जैन ने मुखातिब होकर कहा। यूनिवर्सिटी जाना है पर सब लोग चले गए हैं। मैं जमान भाई और शायान के साथ जाती थी पर अमरीन इनके साथ चलेगी। घड़ी का टाइम देखते हुए और हंसी होकर बोली। अब मैं छोड़ देता हूँ। जैन ने ऑफर दी। नहीं मैं चली जाऊंगी। कैसे? जैन ने इसकी शक्ल देखकर बोला। अनाया ने खाली पोर्च की तरफ देखा, फिर जैन की तरफ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? अनाया में मनाई। मेरे घर में है आज। जैन मुस्कुराकर कहते हुए बाहर बढ़ गया। थैंक्स। जैन ने मोबाइल पर मैसेज टाइप करके अमरीन को सेंड कर दिया। अनाया जैन के साथ इसकी गाड़ी में आकर बैठी, जो अभी जैन लोगों के घर में ही खड़ी थी। ये गाड़ी तुम बाहर क्यों नहीं निकाल रहे घर से? अनाया ने अपने फोन पर टाइम देखते हुए कहा। बस एक बात करनी थी तुमसे। जैन ने गैराज का ऑटोमेटिक गेट खोलते हुए कहा। क्या बात करनी थी? देखो हम लेट हो रहे हैं, तुम बाद में कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर आओ, कान में बताता हूँ। जैन इसकी तरफ देखा। हाँ बताओ, थोड़ा और इधर आओ। इतनी दूर से कैसे बताऊं? यहाँ कोई तीसरा बंदा नजर आ रहा है, अनाया हफ्की से बोली। जैन ने झटके से इसे अपनी तरफ खींचा और इसकी गाल पर बोझ दे दिया। तुमसे किसी रोमांस की उम्मीद नहीं, खुद ही कबाब में हड्डी बन जाती हो। जैन ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि अनाया फटी आंखों से इसको घूरते हुए चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में काफी रश था। स्टूडेंट की हड़ताल की वजह से शोर भी काफी हो रहा था। वैसे यह जुल्म है, इसके लिए खिलाफ धरना होना चाहिए। सारी फास्ट फूड महंगी कर दी गई है और तो और इन लोगों ने कोक पर भी पाबंदी लगा दी है। शिजा ने अपने दुख सबको सुनाते हुए कहा और साथ ही बर्गर का बड़ा सा बाइट लिया। फिर भी तुम्हें खाने से नहीं रोक सकते। जब तुम कबड्डी का वर्ल्ड कप खेलो तो हमारे लिए भी टैक्स ले लेना, जवाब ने लड़ते हुए कहा। हाँ और तुम सब नासा की साइंसदान बन के जाओ और मुझे बताने के मरीख पर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, सीधे जवाब में बोली। तुम लोग दिमाग खराब करना बंद करो, नाया ने तब कर कहा। तुम और हानिया बूढ़ी हो गई हैं, हम तो अभी जवान हैं, शिजा बोली। मतलब? दोनों ने इसकी तरफ देखा। तुम दोनों की शादी जो हो चुकी है, वैसे भी मैंने सुना है सर अशर का ट्रांसफर हो गया है यहाँ से, शिजा बोली। और मैंने सुना है कि सर वहीदान का हाथ है इनके ट्रांसफर में। बोले सर को इनसे क्या मसला है? इसने मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। कहीं वहीदान को पता तो नहीं चल गया था? हानि सोचा। जिसने भी भेजा बहुत अच्छे किया, सर हर लड़की को घूरते रहते थे, हंस कम जहाँ भाग। रबाब बोली। वैसे हानि कभी तुम्हारा दिल बायोटेक्नोलॉजी की मारवी का सर फाड़ने का किया है? शिजा ने इसकी तरफ देखकर कहा। क्यों? अब इस बेचारी की क्या गलती है कि इसका सर फाड़ दूं बगैर वजह के? हानि ने फोन से नजरें हटाकर शिजा को देखा। वजह तो बहुत बड़ी है, जरा थोड़ा घूम कर दे, पीछे देखो। हानि ने गर्दन घुमाकर देखा तो मारवी बिल्कुल वहीदान के साथ लगकर खड़ी थी। शायद कोई पेपर डिस्कट कर रही थी, मगर इतने दांत तो निकलने की जरूरत नहीं थी। मुझे कहते हैं पैदल बदल गए हैं, सब गलती थी हानिया। अब देखो कैसे पतीसी बाहर है। हानि ने चलते हुए वहीदान को हंसते देखकर सजता भी मारवी ने वहीदान के कंधे पर हाथ रखा। हानि के अंदर की बीवी अपने शोर के साथ इस लड़की को देखकर बढ़ेगी। हानि ने जूस की बोतल मेज पर जोर से फटकी और वहीदान लोगों की तरफ बढ़ी। अब आएगा मलता। शिजा आंख दबाकर इनको देखा, कहीं दंगल फसाद हो जाए। देवा हानिया को जाता देखकर बोली। नहीं होगा, तुम बस सीन देखो। शिजा बर्गर खाते हुए बोली। सर मुझे भी कुछ टॉपिक समझने में अगर आपके पास टाइम हो तो। हानिया ने घूर कर मारवी को देखा, फिर वहीदान की तरफ मतवजह की। जी मैं फारूक हूँ। वहीदान ने हैरानी से हानि की तरफ देखा, फिर कुछ समझकर मारवी से मुखातिब हुआ। बाकी की पॉइंट्स आप मैम समारत से समझ लें, इससे ज्यादा मैं आपसे
की मदद नहीं कर पाऊंगा। मारवी ने नापसंदीदा गांव से हानि को देखा और चली गई। मारवी जाते ही वहीदान ने सुख का सांस लिया कि कहीं हानि को शक का नया टॉपिक मिल जाता। इधर दिखाओ कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा। वहीदान ने इसके हाथ से नोट्स लेते हुए, ये इंटीग्रली केमिस्ट्री के नोट है, मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं। इसने हानि की तरफ देखते हुए कहा, यही तो बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट्स को आप कौन से डीएनए के स्टार्ट समझा रहे थे, ये आरएनए के ग्राफ समझा रहे थे। हानिया को मारवी की इस तरह की मुस्कुरा कर देखने में काफी तब चढ़ गई थी। हानिया, तुम बिना कभी शक के दायरे से निकला करो। इसके भाई ने एमबीए में दाखिला लेना था तो बस यही पूछ रही थी कि वहीदान हाफिज से बोला। हानिया ने इसके हाथ से नोट छिपे और जाने लगी। आप कहाँ जा रही है? वहीदान इसको जाता देखकर बोला। सर रशीद के पास मुझे मिस वर्ल्ड पर काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पूछने। हानि ने जानबूझकर कहा, जिस पर वहीदान ने घूर के इसकी तरफ देखा। अपना गुस्सा सब करते हुए इसका चेहरा लाल हो गया। आइंदा कभी अशर का नाम तुम्हारी जुबान पर ना आए, वरना पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें लेकर जाने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारा कुछ नहीं कहा जा सकता और अशर को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया है एक और बॉयज कॉलेज में। लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। शाम को मैं लेने आऊंगा, आंटी से मैंने बात कर ली है। एक एक कर वहीदान हैरान खड़ी हानि को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। पता नहीं इस लड़की को मेरा ब्लड प्रेशर हाई करके क्या मिलता है, इसने क्लास की तरफ जाते हुए सोचा। हानि घर में दाखिल होते ही अपने कमरे का रुख किया, अपना दुपट्टा और बैग जोर से बेड पर फेंका और बेस पर पड़े पेपर स्वेट को उठाकर पूरी शिद्दत से दीवार पर दे मारा। इसकी आंखों के सामने 3 साल पहले के मनाजर चलने लगे जब वो लिफ्ट से वहीदान के ऑफिस में गई। आज भी सोचकर इसका दिल दुखता था। इसके दिल को रफू गिरने से खुद ही चाक कर डाला था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर वो चमकी और हाल में वापस आई। हानिया, बच्चे सब ठीक है? ये आवाज कैसी थी? समिया बेगम की आवाज पर वो संभली। कुछ नहीं मामा, गलती से गुलगुल गिर गया था। अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ खाने के लिए। समिया बेगम के जाने के बाद इसने आंसू साफ किए। खाना खाने का दिल तो नहीं था, मगर इस तरह कमरे में भी नहीं रहा जा सकता था। फ्रेश होने के बाद खाने की मेज पर पहुंची तो सब लोग मौजूद थे। इसने अपनी प्लेट में कुछ चावल डाले और खाने लगी। हानि, बेटा क्या बात है, बहुत खामोश हैं आप? रियाज साहब बोले। नहीं मैं ठीक हूँ बाबा। फिर समिया की तरफ मतवजह। मामा, आपने वहीदान से कुछ कहा है? हाँ, 5 बजे, आज 5 बजे आपको पिक कर लेगा डिनर के लिए और 8 बजे तक आपको वापस छोड़ देगा। वो श्योर है? आपका चाहता तो वैसे भी कह देता, पूछता भी ना, पर काफी तमीजदार बच्चे हैं। तमीजदार हूँ? हानि बड़बड़ाई। शाम तक तैयार रहना। समिया बेगम बोली। पर मामा, पर कुछ नहीं, तुम्हें अक्ल पता नहीं कब आएगी। ससुराल की ऊंच नीच तुम नहीं जानती, छोटी मोटी बातें बड़े बड़े मसाइल बनाती हैं। समिया बेगम ने समझाने की सीखी। जी, हानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैंने तुम्हारा ब्रेक ड्रेस प्रेस कर दिया है और अब अपने काम खुद करने सीखो। हानिया जी अच्छा कहती कमरे की तरफ बढ़ गई। 5 बजे तक हानिया अपने मामा के 2 बार डांट सुनने के बाद बिल्कुल तैयार थी। ब्लैक कलर के फ्रॉक पर रेड लिपस्टिक और ब्लैक हाई हील पहनी हुई थी, साथ रेड दुपट्टा और रेड ही टॉप्स पहने थे। मामा, इसकी क्या जरूरत है? मैं शादी पर तो नहीं जा रही। हानिया ने शीशे में खुद को देखा। पहली दफा शोर के साथ बाहर जा रही हूँ, अब पहली वाली हरकतें छोड़ दो, थोड़ा तैयार रहना सीख लो। समिया बेगम ने फिर से थोड़ी इज्जत हुई। तभी दरवाजे पे बेल हुई। मैं देख कर आती हूँ, तुम भी दुपट्टा सेट करके आ जाओ। समिया बेगम बाहर आई तो मुलाजिम वहीदान को अंदर बैठा चुका था। समिया बेगम ने मुलाजिम को लवात लाने के कहा और खुद सोफे पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हानिया को मिला दें। वहीदान बोला। वो बस आ रही है। तब ही हानिया बाहर आती दिखाई दी। वहीदान ने इसको इतना तैयार देखकर अपनी आंखें खोलकर सर था इसको देखा, लेकिन समिया बेगम की खांसने की आवाज पर इसकी तरफ देखकर हजल हुआ। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा बैठो, चाय तो पी लो। समिया बेगम इनको लोगों को जाता देखकर बोल। बस बहुत शुक्रिया आंटी, पर 5:30 यहाँ ही हो गए हैं, फिर कभी अब तो आना जाना रहेगा ही। वो कहते हुए बाहर बढ़ गया। अपना मुंह ठीक रखना। समिया बेगम हानिया को तनबीह करना ना भूली। वहीदान लोगों की गाड़ी अभी रास्ते पर ही रवा थी। वहीदान ने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया तो रेडियो पर लगा गाना सुनकर हानिया तब गई। ये वही गाना था जो लाइट फेस्टिवल की रात लगा हुआ था। हानिया ने रेडियो जल्दी से बंद किया, जिस पर वहीदान के चेहरे पर मुस्कुराहट लगी। मोहतरमा बोली तो कुछ भी नहीं, इसने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी रेस्टोरेंट आ गया। वहीदान ने गाड़ी पार्क की और उतरकर हानिया की साइड का दरवाजा खोला। दोनों एक साथ ही अंदर दाखिल हो गए तो वहां मौजूद कई लोगों की नजरें इसकी तरफ उठी। सर, एक वेटर ने नमदार होकर कहा। प्राइवेट रिजर्वेशन थी। वहीदान बोले। जी सर, आए मेरे साथ। मैम ने बताया था। वेटर की बात सुनकर हानिया के कान खड़े हुए।